who are governed by the state. सो जब भी सेंट्रल और स्टेट की बात करते हैं तो मैक्सिमम उसकी कैपेबिलिटीज के ऊपर वो सेंट्रल में जाएगा या स्टेट में जाएगा, ये डिफाइन होता है। जैसे स्टेट में अगर हम बोलते हैं एमपीसीबी, दैट इज महाराष्ट्र पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, जीपीसीबी गुजरात पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, लाइकवाइज हर स्टेट का एक अलग पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड होता है जो उनके एरिया के एनवायरमेंटल मॉनिटर को कैप्चर करता है। उसके बाद जो मेन और सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है जो लीगल मेट्रोलॉजी। बहुत सारा कंसेप्ट और मिसकंसेप्ट है लीगल मेट्रोलॉजी के बारे में करंटली इन द इंडस्ट्री। बट द प्रॉब्लम इज हमें उसको क्या करना चाहिए, व्हाट इज द करेक्ट मीनिंग, व्हाट इज द करेक्ट वे ऑफ डूइंग इट। And by many of the legal metrology department, they are now have something called as a training section across pan India. So they are running since last 3 to 4 months. So they have multiple training sessions, how they are going to govern, how they are going to get benefit to industry, how they are protecting the consumer. All these are control and have a very interaction session with the legal metrology part. Then we have FSSAI. So other license are more or less are applicable to other industry as well. But for food industry, it is more specific that we should go with the Food Safety Standard Authority of India, that is FSSAI. And they have very fantastic work in last almost 10 years. They have done a significant changes, shifts, and now it has been compared with the US FDA and other like a global European regulations. So we reach almost a very good level in terms of FSSI. And now we talk about the factory license. It is now mandatory. So in some cases, the factory license will be small scale, medium scale, and other licenses. So ये सब जो licenses है, ये कम से कम हमें mandatory है ही, जिसको हमें फूड इंडस्ट्री रन करने के लिए हमें लगने ही वाले हैं। जनरली जो फैक्ट्री लाइसेंस है वो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट गवर्नमेंट का जो एक डिवीजन है वो हैंडल करता है। और दे आर डीलिंग टू राइट टू सर्विस, वेलफेयर स्कीम ऑफ डोमेस्टिक वर्कर, मीन्स वो वर्कर के चीजों को भी प्रोटेक्ट करता है, वेलफेयर स्कीम ऑफ बिल्डिंग एंड अदर, सो दैट human health will be secure, elimination of child labor. It is very paramount for Ministry of Labor to eliminate the child labor. Or almost we achieve a maximum of 95% across India, that we are eliminating from any disasters or related issues. Now we have a second as a FSSI. Earlier, what happened is there are a lot of individual laws. Like for vegetable oil, it is very separate law. We have adulteration laws. There are central and state standards are applicable. Milk and milk product orders. All these laws are available earlier, which is governing the food industry completely. Now what happened is when it is decided that there are a lot of trouble for the businesses. They don't know where to go, what license has to be taken, what to do, हमें कैसे करना चाहिए, क्या करना चाहिए, ऑलवेज उनके बीच में एक डर लगा रहता था। नाउ वो जो डर है वो निकालने के लिए गवर्नमेंट हैज डन सम फैंटास्टिक वर्क ऑफ एस्टेब्लिशिंग FSSAI, that is the Food Safety and Standard Authority of India, which we call as a FSSAI in across food industry.
सो ये जो है ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर, एंड इसको गवर्न और इसको जो रेगुलेट करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के लिए है. Then, if we go with what exactly FSSI do, we go in a detail of FSSI, but in very nuts and shell, I'll tell you what will FSSI do. They generally have a structurized way of how they approach to Indian every business operator, that they framing a regulation. It will help us all industry, a similar kind of industry lay down a similar standard. सो अगर मैं कहीं गुजरात में बिजनेस कर रहा हूँ, कभी मध्य प्रदेश में बिजनेस कर रहा हूँ, या कहीं पे भी बिजनेस कर रहा हूँ, तो अगर मेरा सेम काइंड ऑफ बिजनेस है, मेरा फूड प्रोसेसिंग का बिजनेस है, मेरा वाइन मेकिंग का बिजनेस है, या मेरा कोई भी फूड रिलेटेड जो ह्यूमन कंज्यूम करते हैं उसके रिलेटेड बिजनेस है, तो देयर शुड बी यूनिफॉर्मिटी इन रेगुलेशन. अर्लियर स्टेट वाइज बहुत सारे रेगुलेशंस थे और सेंट्रल वाइज बहुत सारे रेगुलेशंस थे. सो बिजनेस ऑपरेटर बहुत ज्यादा कंफ्यूज था कि मैं कौन सी चीज करूं, ये चीज करूं, सेंट्रल ने जो बोला है वो करूंगा तो शायद मैं स्टेट का डिफर कर सकता हूँ. बट दिस इज what fantastic work is framing of regulation is more FSSI do. Next will be the laying down mechanism and guidelines. मैकेनिज्म मीन्स किस तरीके से होना चाहिए. अर्लियर अगर मैं 1992 में अगर बात करता हूँ, देयर आर लॉट ऑफ फेक फूड सेफ्टी ऑफिसर्स traveling across state or country or and all this. They are collecting the sample and they are reporting that there is a problem and there are lot of troubles in the businesses. So now they have started up a mechanism how the sample is collected, when the sample is collected, if there should not be a conflict between food business operator and regulator. जब वो सैंपल कलेक्ट करते हैं तो वो कैसे सैंपल कलेक्ट होना चाहिए, उसका स्टैंडर्ड प्रोसेस एंड प्रोटोकॉल बना दिया है. एंड देन उन्होंने ये भी डिसाइड किया कि कौन, अगर मैं सैंपल कलेक्ट करता हूँ और उसकी टेस्टिंग में करता हूँ तो कौन से एक्रेडिटेड लैब में होनी चाहिए. सो उसके लिए भी कौन से एक्रेडिटेशन लैब्स है, या उसके रिलेटेड जो सेंट्रल लैब्स कौन से है. उसके बाद स्टेट लैब्स कौन से रहेंगे. जो ये रेफरेंस लैब का एक कंसेप्ट उन्होंने लाया कि अगर मेन कोई भी एक्रेडिटेड लैब में कोई सैंपल फेल हो जाता है तो वी आर एबल टू चैलेंज टू टेस्ट इनटू द सेंट्रल लैब which is completely governed and it is internationally accepted as standard that generally we follow. देन भी उनका और एक काम है कि साइंटिफिकल एडवाइसेस मार्केट को प्रोवाइड करना. बहुत सारे मिसकंसेप्शंस हुए थे, बहुत सारी जगह पे चीजें वायरल हुई थी कि लाइक आई गिव ए एग्जांपल ऑफ जैसे आटा जो है वो आशीर्वाद का आटा है या कोई भी ब्रांड का आटा है, दे आर सेइंग कि उसमें प्लास्टिक है. सो ये चीज सच है या झूठ है, या कहीं पे बहुत सारे लोगों ने इशू रेज किया था कि कलर यूज होता है, तो उसका क्या रैशनल है. कोई चीज जैसे कुछ कुछ चिली के टाइप्स होते हैं जो आपको नेचुरली कलर देते हैं, बट people feel that it is artificial color. So all this technical support and advices are being impaneled by the FSSAI in a multiple. If you go to the FSSAI site, you will get a lot of things to understand. देन बहुत सारा डेटा लगेगा ये चीज के लिए कि हमारे पास कोई रिस्क जनरेट होते हैं, कुछ कंटेमिनेशन जनरेट होता है. सो एवरीबडी नो अबाउट द इशू विद द नेस्ले मैगी, जहाँ पे हमें इशू मिला था जिसमें जो कंटेमिनेशन है वो प्रोडक्ट में मिले थे.
जो शायद हार्मफुल हो सकते हैं, दैट इज अ वेरी कंट्रोवर्शियल केस जिसमें बहुत सारा रिस्क इन्वॉल्व था। तो ऑल दिस रिस्क जो है वो उसको स्टडी करके उसका रैशनलाइज, क्योंकि जो रिस्क हमारे लिए अलाउ एप्लीकेबल है, तो वो शायद दूसरे लोगों के लिए एप्लीकेबल होगा या नहीं, इसका कोई भरोसा नहीं है। जैसे लाइक इंडिया इंडिया में अगर देखते हैं तो सबसे कम एलर्जिक कंडीशंस है, बट अगर आप यूरोप में जाते हो या यूएस में जाते हो तो देर इज मेनी एलर्जिक कंडीशंस, एलर्जेंस, मेनी एलर्जेंस आर देयर। So such help is given by FSSAI. Then they also do creating information network across the country through various channels. आपने टीवी और बहुत बहुत सारी जगह पे देखा होगा कि उनके एड्स आते हैं कि ये ये इशू है, यहाँ पे ये प्रॉब्लम मिला हुआ था, इतना रिकॉल हुआ है। देर आर लॉट ऑफ न्यूज अक्रॉस मल्टीपल कंट्रीज। रिसेंटली मीन्स 2 वीक पहले ही न्यूज पे एक आया था कि जो यूपी में घी पकड़ा था, उसमें एडल्ट्रेशन और केमिकल्स यूज किए थे। सो वो देयर आर इंफॉर्मेशन एंड न्यूज नेटवर्क हु इज जस्ट सपोर्टिंग देम टू guide the customers as well as to protect the, in terms of who are having a very good ethical businesses, उनको भी प्रोटेक्ट करना है। ये सब जो है ये इंफॉर्मेशन नेटवर्किंग थ्रू वो प्रोवाइड करता है। देन दे हैव सेपरेट ट्रेनिंग प्रोग्राम्स फॉर ईच पर्सन। मीन्स अगर लेवल्स अगर देखते हैं तो देर आर मल्टीपल लेवल्स ऑफ ट्रेनिंग प्रोग्राम्स। जैसे बेसिक ट्रेनिंग प्रोग्राम, जैसे मैं कहीं पे रेस्टोरेंट में काम कर रहा हूँ तो रेस्टोरेंट में मुझे बेसिक सेफ्टीज कैसे मेंटेन करनी है। सो उन्होंने मैंडेटरी रूल्स बनाए हैं कि कितने लोग अगर एक होटल में एज इन काम करते हैं, एज अ सर्विस करते हैं या फूड को टच करते हैं, तो उनको कितने लोगों के बीच में कितनी ट्रेनिंग्स होनी चाहिए। सेम काइंड इंडस्ट्री में हर 25 लोगों के बीच में एक फूड सेफ्टी सुपरवाइजर होना चाहिए। सो अगर आप टोटल 100 मैन पावर्स यूज करते हो तो आपको 4 फूड सेफ्टी ट्रेन पर्सन होने चाहिए जो आपके फील्ड में, जैसे एडवांस मैन्युफैक्चरिंग ट्रेनिंग्स होते हैं उसमें होने चाहिए। बेसिकली जो इंटरनेशनल टेक्निकल स्टैंडर्ड्स है उसमें हमारा भी कंट्रीब्यूशन बहुत सारा है। अर्लियर दिस कंट्रीब्यूशंस आर वेरी नेग्लिजिबल। मींस हम दुनिया जो बोलती है वही हम फॉलो करते थे फूड रेगुलेशंस के लिए, कि जैसे यूएसएफडीए जो बोलता था वही हम फॉलो करेंगे, कोई कुछ और बोलता था वही हम फॉलो करेंगे। यूरोपियन यूनियन के लोग कुछ और बोलते थे, न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया से अलग अलग चीज बोलते थे, वो सेम चीज हम फॉलो करते थे। नाउ एफएसएसआई हैज वर्क, उन्होंने बहुत ही इनपैनल किया है साइंटिफिक टीम को टू डेवलप अ टेक्निकल स्टैंडर्ड। जिस तरीके से हम ड्रिफ्ट की बात करते हैं, जिस तरीके से रैपिड टेस्टिंग की बात करते हैं, ये सब जो डेवलपमेंट है नाउ इट इज बीन एक्रीडेटेड। और ये जैसे एओएसी जो ग्लोबल स्टैंडर्ड है, एओएसी, आईएस स्टैंडर्ड, आईएसओ स्टैंडर्ड, ये बहुत सारी चीजें हमसे भी, मीन्स एज इन इंडिया से भी ये चीजें ले रहे हैं टू डेवलप एंड स्ट्रेंथन द फूड सेफ्टी सिस्टम्स। And last is promoting general awareness, like they are conducting a lot of workshop across India to have a complete understanding of what FSSI system is do. I'm not into directly a role of government, but who is into the kind of consultation role is also promoting the same way that what FSSI is do. And now it has been very significant contribution of each and every individual, as in government, as in influencer. They are now added many influencer to promote the food safety across Indian, pan India basically. So now we talk about legal metrology. लीगल मेट्रोलॉजी जनरली हम रेफर करते हैं कि देर आर एक्ट एंड देर इज some rules and regulations. First, I talk about the act. This act is established in 2009, which has a lot of updation and continuous
implementation and improvements in upcoming years. And now this act is recently converted as a Jana Vishwas amendment provision. Or recently, means in the month of June, July, there is this government body, their government officials, uh, उन्होंने एक सहारा स्टार होटल में एक कॉन्फ्रेंस किया था जिसमें ये चीजों के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस किया था कि बहुत सारे केसेस पेंडिंग है, बहुत सारी चीजें मीन्स जो बिजनेस चलाते हैं उनके भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे जो हर हर जगह से आ रहे थे, हर कंट्री से आ रहे थे. So they call upon the influencer, they call upon a lot of people across the industry, they call upon many of the consumers who has they're willing to put their thoughts on improvement. ये सब जो इम्प्रूवमेंट है, उसके बाद जो है रिसेंटली इन्होंने उसको जो लीगल मेट्रोलॉजी को है ना एक नाम दिया है जन विश्वास. सो इट इज मेन एम ऑफ अचीविंग द स्टैंडर्ड्स ऑफ लीगल मेट्रोलॉजी. लीगल मेट्रोलॉजी इज जस्ट प्रोवाइडिंग यू द एक्यूरेट इंफॉर्मेशन टू कंज्यूमर. कंज्यूमर के साथ कोई भी मीन्स उनको चीटेड फील ना हो, ये सबसे बड़ा एम है लीगल मेट्रोलॉजी का. एंड ये बहुत ही ड्रास्टिकली चेंज हुआ है. बहुत सारे रेगुलेशंस को सिंप्लीफाई किया है, जैसे फूड बिजनेस ऑपरेटर उसको इनैक्ट करने के लिए इजी हो. देन ये ये एक्ट के बारे में जैसे हमने जाना, वैसे हम जानते हैं package commodity rules that they call as a legal metrology package commodity rules 2011. And latest it has been amendment, and now the final which is available is a legal metrology package commodity amendment rule 2023. This is as I said ki it is all governed by the Department of Consumer Affairs. एंड ये जो पैकेज कमोडिटी रूल है बहुत सारी चीजें बताता है जो एफएसएसआई भी अलाइन है उस चीज को. मैं उस ये सेक्शन आगे भी कवर करूंगा कि हाउ द पैकेज कमोडिटी रूल विल प्ले इन अ फूड इंडस्ट्री और एनी ऑफ द फूड मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स. देन हमारे पास जो पोल्यूशन कंट्रोल होता है, तो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो है ना, ये जनरल एनवायरनमेंट को कैसे हम सेफ रखें, ये सेफ रखने के लिए उनको क्या क्या चीजें करनी चाहिए, कैसे कैसे चीजें करनी चाहिए, उनका स्टैंडर्ड बहुत ही खूबसूरत तरीके से उन्होंने डिफाइन किया है. और ये बहुत यूजर फ्रेंडली है टू ईच एंड एवरी बिजनेस ऑपरेटर. इफ दे कैन हैव वन सिंगल रीड आउट ऑफ इट, दे गो गेट टू नो एवरीथिंग. सो उसमें जनरली हम क्या क्या चीजें कवर करते हैं, तो वाटर क्वालिटी हम कवर करते हैं, एयर क्वालिटी हम कवर करते हैं, नॉइज स्टैंडर्ड्स फॉलो करते हैं, ऑटो फ्यूल क्वालिटी कैसी होनी चाहिए वो कवर करते हैं, जनरेटर सेट को हम कवर करते हैं. देन बायोमेडिकल वेस्ट को कवर करते हैं और इंडस्ट्रियल स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते हैं. अब इंडस्ट्रियल स्टैंडर्ड बेसिकली क्या होता है कि ये सभी इंडस्ट्री में भी यूज होता है, जैसे वाटर भी यूज होता है, एयर भी होता है, नॉइज भी यूज होता है. एवरीथिंग मीन्स एवरी इंडस्ट्री हैज ऑल दिस काइंड ऑफ रिक्वायरमेंट इन देयर इंडस्ट्री. बट क्या होता है कि इसका जो वेस्टेज होता है दैट इज ऑल्सो हार्मिंग टू द एनवायरमेंट. सो ये एनवायरमेंट को इम्पैक्ट जो है, इसको हमें थोड़ा सा कंट्रोल मिनिमाइज और उसको एक एक्सेप्टेबल लेवल तक लेके आने के लिए दे स्टार्ट ऑफ क्रिएटिंग स्पेसिफिकेशन कि अगर आप कोई डिस्चार्ज कर रहे हो, वाटर डिस्चार्ज कर रहे हो, तो उसका बीओडी सीओडी कितना होना चाहिए. बीओडी सीओडी मीन्स बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड्स, ये सब चीजें क्या होनी चाहिए सो दैट वो एनवायरनमेंट को हार्म ना करे. मीन्स आपने फूड इंडस्ट्री बना दी बट आप एनवायरनमेंट को हार्म करके बना रहे हो. दैट इज ऑल्सो गवर्न बाय द पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड. It is of central as well as state board. So how your business falls under,
उसका भी गाइडलाइन उन्होंने दिया है कि कौन से बिजनेस को हम सेंट्रल बिजनेस कह सकते हैं और कौन से बिजनेस को स्टेट बिजनेस कह सकते हैं। जैसे एफएसएसआई में क्लियर है, जो मैं अभी आगे बताऊंगा, बट स्टेट और सेंट्रल में ये जो क्लियरिटी जो है, ये आपको बहुत कॉम्प्लेक्सिटी है। मीन्स लाइक अगर कोई भी आप इसको हम डायरेक्टली नहीं बोल सकते ये सेंट्रल में जाएगा या स्टेट में जाएगा, बट इतना श्योर है कि आपकी आपकी कौन सी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है, आपका कैसे मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, आपका कितना इफ्लुएंट निकलता है, उसके ऊपर ये सब डिपेंड है कि ये सेंट्रल में जाएगा या स्टेट में जाएगा। देन जैसे मैंने बताया कि अभी ये बहुत ही लेटेस्ट रेगुलेशन है, दैट इज सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी। ये इस्टेब्लिश तो हुआ था सितंबर 2020 को, बट इसको इम्प्लीमेंट करते करते अभी जनवरी 2023 से लेके इसको बहुत ज्यादा मैंडेटरीली फॉलो किया जाता है। इसका कंप्लायंस वेरिफिकेशन बहुत स्ट्रिंजेंट होता गया है। नाउ मई जून मंथ में इसको और स्ट्रिंजेंट किया है, क्योंकि हमारे पास वाटर रिसोर्सेस बहुत कम है। जो पीने लायक वाटर रिसोर्सेस है, ये मीन्स कंजम्पशन वाइज हम बोल सकते हैं, तो ये बहुत ही ज्यादा कम है। और ये कम होने के बावजूद हमें उसको कैसे इफेक्टिवली यूज कर सकते हैं, कितना हम इफेक्टिवली यूज कर सकते हैं। और ये जो है, ये स्पेसिफिकली रिसेंट गवर्नमेंट में जो है डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्स, रिवर डेवलपमेंट एंड गंगा regions में इसको कंसिडर किया हुआ है। So it is governed by these people, and they are very now into inact position right now. ये अभी जनरल हो गया है। मैं थोड़ा सा डिटेल में अभी हम जो फूड सेफ्टी के रिलेटेड जो रेगुलेशन है, उसमें थोड़ा सा ज्यादा फोकस करके आपको मैक्सिमम इंफॉर्मेशन देने की कोशिश करेंगे। सो जनरली क्या हुआ था कि हमारे जो रेगुलेशंस डेवलप हुए हैं, इट बिगिन विद 1937, और जो हमारा फाइनल एफएसएसआई हुआ है ये 2006 में हुआ है। इसके बीच में बहुत सारी एक्टिविटीज, बहुत सारी कमिटीज और बहुत सारे इनपुट्स हमने करके अभी एक मैच्योरिटी जो है, जो हम एफएसएसआई के थ्रू डिस्कस कर रहे हैं, इज एस्टेब्लिश विद ऑल द मैच्योरिटीज। पहले क्या था कि हर एक लॉज में, जैसे प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन बिल, वॉट एवर द बिल जो आया था, वो सिर्फ एडल्ट्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आया था, जिसमें फूड सेफ्टी मेजरली रोल प्ले कर रही मीन्स अ स्मॉल पार्ट ऑफ फूड सेफ्टी इज कवर। सो एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में भी बहुत सारे डेवलपमेंट्स हुए थे। जो कुछ भी हमारा एग्रीकल्चर वेस्ट है, मीन्स जो कुछ भी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट हो रहे हैं, हमारा कंजम्पशन बहुत कम हो रहा था। सो ऐसे बहुत सारे जो सेफ्टी रैशनल थे, उसको कलेक्ट करके हमने एफएसएसआई 2006 में ये बिल पास हुआ था पार्लियामेंट कमेटी से। और उसको इन्फोर्समेंट जो हुआ था 2007, 8 और 9 में, मीन्स मल्टीपल रेगुलेशन, जैसे एक्ट, उसका एफएसएसआई का भी एक्ट है, एफएसएसआई का भी रूल है, एफएसएसआई की भी रेगुलेशंस है। ये सब चीजें जो है, ये प्रोसेस स्टार्ट हुआ था व्हेन इन 2006 द बिल इज पास। सो जब ये एक्ट पास हुआ था, तो ये 23 अगस्त 2016 को ये एक्ट पास हुआ था। और ये स्टैंडर्ड एक्ट जो है, ये जनरली साइंटिफिक बेस्ड स्टैंडर्ड्स जो करंटली हम बाहर से, उस टाइम पे जो बाहर से स्टैंडर्ड्स है, उसको कंसोलिडेट करके इंडियन स्टैंडर्ड के साथ हमने इंडियन साइकोलॉजी के साथ मिक्स करके इस चीज को हमने एक्ट के फॉर्म में लेके आए। एंड देन वी हैव अ रूल्स एंड रेगुलेशन। सो जैसे हमने पीछे पीछे भी देखा था कि वट एवर द स्टैंडर्ड, हाउ दे आर गोइंग टू डू इट, जैसे वो किस तरीके से उनका स्ट्रक्चर होना चाहिए। ये रूल्स जो है स्पेसिफिकली, एक्ट्स ऑन रूल स्पेसिफिकली हमें डिस्क्राइब करते हैं कि कौन, who is going to collect the sample, who is going to analyze the sample, who is going to do
वॉट एवर द मॉनिटरिंग सिस्टम स्ट्रक्चराइज वे जो है, कोई भी उठ के आपका सैंपल पिक नहीं कर सकता है, एंड कोई भी रिपोर्ट जनरेट करके फॉल्सिफिकेशन करके बिजनेस को ट्रबल लाने की जो चीजें हैं वो नहीं हो सकती है। सो ये भी इंश्योर करता है फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड एक्ट। उन्होंने स्टैंडर्ड फॉर्म्स भी डिफाइन करके रखे हैं कि अगर वो कोई सैंपल कलेक्ट करते हैं या कोई भी चीज में उनको बुकिंग मीन्स कोई सैंपल को बुक करते हैं तो फॉर्म 1 यूज होगा। अगर उनको लगता है कि वो इशू जो है वो ऑब्जेक्टिवली प्रूव हो चुका है, देन उसको किस तरीके से सीज करते हैं, जो जो कुछ भी सैंपल सील कलेक्ट करते हैं उसको डुप्लीकेट ट्रिप्लीकेट पे कैसे सैंपल कलेक्शन करना है, ऑल दिस आर गिवन विद द स्टैंडर्ड फॉर्म्स। उसके बाद जो है रेगुलेशन वाला पार्ट आता है। जनरली देर आर लॉट ऑफ रेगुलेशंस, वी हैव मोर देन 20 25 नाउ, ऑलमोस्ट 25 regulations are there, out of which is applicable to the food business operator is I'm highlighting here is there is a license and registration of food businesses. There is a standard for food standards and food additives. What are the standard product we should use in our food industry? Then we have a food safety standard laboratory sampling and analysis. How the FSSAI will do. We have a prohibition and restriction of sales. We have some contamination and toxicity. All these regulations are very mandatory, and whatever I highlighted here, the 4 to 5 standard in this page is mandatory requirement for the food industry. We have also food safety standard import regulation, but it is also depend on the industry to industry. If they are importing some product from outside of India, then such regulation is applicable to that. Then there is a lot of food safety standard, alcohol and beverage regulations, food safety standard, fortification of food, food safety audit, recognition and notification of laboratory. The main part, which is I talk about the PCR in the earlier section, the same thing is food safety standard packaging regulation. It is almost a similar kind of thing, but it also have a very detailed understanding of what regulations we have to follow. For the specifically for the food industry, because this PCR guideline is applicable to other cosmetic, other many of the like whichever is available to consumer, everything is covered there. But for the food safety, we have specific guidelines which is covered in the packaging regulations, as well as food safety standard labeling and display regulation. This is also available on the link, which I'll share you separately. सो जब हम रेगुलेशंस की बात करते हैं तो सबसे सबसे बड़ा और सबसे पहले utmost इम्पोर्टेंट होता है जो अपना लाइसेंस रजिस्ट्रेशन ऑफ फूड बिजनेसेस। हमारा फूड बिजनेस को लाइसेंस करवाना ये हर एक इंडस्ट्री का एक टॉप मोस्ट प्रायोरिटी होता है, और यही बड़ा चैलेंज होता है कि हम किस तरीके से इसको करें। सो अर्लियर देयर आर लॉट ऑफ सिस्टम्स जो अभी कंप्लीटली ऑनलाइन हो चुका है। जैसे मैंने बताया कि अभी हमारे जितने मैंडेटरी रेगुलेशंस है जो फूड इंडस्ट्री में होते हैं, वो सभी रेगुलेशन ऑनलाइन एप्लीकेशन थ्रू होते हैं। और एफएसएसआई 2 स्टेप आगे है कि नाउ दे हैव इंटरेक्शन देयर पोर्टल दैट कॉल्ड एज अ फॉस्पॉस सिस्टम, जो जनरली बहुत ही फंटास्टिकली वर्क करता है। बहुत सारे इंटरफेस बोल सकते हैं जो हम जो गवर्नमेंट एजेंसीज है उनके साथ और फूड बिजनेस ऑपरेटर के साथ वर्क करते हैं। तो वो बेसिकली जो होता है कि कौन सी इसमें मल्टीपल शेड्यूल्स है,
जो शेड्यूल 1 बोलता है कि कौन सा फूड बिजनेस किस प्रीव्यू में आएगा, जैसे सेंट्रल में कौन सा आएगा और स्टेट में कौन सा आएगा। शेड्यूल 2 बोलता है कि एप्लीकेशन एंड रजिस्ट्रेशन, जो हम एप्लीकेशन करते हैं और रजिस्ट्रेशन प्रोसेस किस तरीके से होना चाहिए और क्या इंफॉर्मेशन और क्या डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। देन इसका ही पार्ट बी होता है जो रेगुलेशन फॉर रिन्यूअल लाइसेंस के लिए यूज होता है। जैसे हम जो कुछ भी एप्लीकेशन फिल करते हैं, शेड्यूल 2 आपको एप्लीकेशन देता है, शेड्यूल फॉर्म बी आपको जो आपने भरा हुआ फॉर्म है उसको रिप्लाई मीन्स उसको दर्शाता है। और उसके ही नीचे हम देखते हैं कि देयर आर मल्टीपल एनेक्शंस फॉर फॉर्म बी, मीन्स हम क्या क्या चीजें उसमें मैंडेटरी देना चाहिए, उसका एक फॉर्मेट भी उन्होंने डिफाइन करके रखा है। अ, जैसे डिक्लेरेशन एंड कंप्लायंस विथ रेगुलेशन, डॉक्यूमेंटेशन टू बी इंक्लूज फॉर न्यू एप्लीकेशन, कंडीशन ऑफ लाइसेंस। देन ये जो चीजें हैं ये एनेक्शंस है जो फॉर्म बी के साथ हमें सबमिट करने पड़ता है। ये अभी ऑनलाइन प्रोसेस हो चुका है तो हमें फिजिकल फॉर्म सबमिशन की जरूरत नहीं है, हमें इसके स्कैन कॉपीज स्कैन करके उनके पोर्टल पे अपलोड करने पड़ते हैं। व्हेन वी कम्स टू द फॉर्म सी, ये लाइसेंस फॉर्मेट है। आपको जो लाइसेंस मिलेगा वो कौन से फॉर्मेट में आपको लाइसेंस मिलेगा, ये इसका पूरा ब्रीफिंग उसके ऊपर दिया हुआ है। उसके बाद आता है फॉर्म D1 जो एनुअल रिटर्न मीन्स, जब भी हम स्पेसिफिकली मिल्क के लिए हम करते हैं, फॉर्म D1 इज रेफर टू मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट। जो हम आपने कहाँ से मिल्क प्रोक्यूर किया था, कितना मिल्क प्रोक्यूर किया था और कितना आपने सप्लाई किया है, ऑल दिस फॉल्स अंडर द एनुअल रिटर्न। D2 आता है कि वही जो एनुअल रिटर्न हम भरते हैं वो हाफ ईयरली भी हमें भरना पड़ता है इन केस ऑफ मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स के लिए। सो उसके लिए हाफ ईयर रिटर्न्स में किस फॉर्म में होना चाहिए, किस तरीके से होना चाहिए, दैट इज कम्स अंडर द फॉर्म D2। फॉर्म ई फॉर द गारंटी, जब भी हमें किसी इंडस्ट्री को गारंटी देना है तो उसको प्रिस्क्राइब वे से हमें गारंटी देना पड़ेगा और उसको भी डिफाइन किया है फॉर्म। देन ये कंप्लीट करता है शेड्यूल 4 का रिक्वायरमेंट। शेड्यूल 3 का रिक्वायरमेंट जो है किस तरीके से फीस जो है हम उसको पर एनम हम किस तरीके से फीस चार्जेस करेंगे, मीन्स ये सब गवर्न करने के लिए जो पैसा लगता है, जो फीस के थ्रू वो लेते हैं, तो वो किस तरीके से लेंगे, किस स्ट्रक्चर से लेंगे, उसको डिफाइन किया है। एंड शेड्यूल 4 रिक्वायरमेंट आर द जनरल हाइजीनिक रिक्वायरमेंट जो हम आगे अभी कवर करें। सो हम अगर शेड्यूल 1 की बात करते हैं तो मेरा डेयरी यूनिट है। आई आई जस्ट टेक बिट्स ऑफ 2 और 3 यूनिट्स। जैसे डेयरी यूनिट्स है इंक्लूडिंग मीट चिलिंग। अगर मैं हैंडल फॉर प्रोसेस मोर देन 500 लीटर्स ऑफ लिक्विड मिल्क पर डे और 250 मेट्रिक टन्स ऑफ मिल्क सॉलिड पर एनम। मिल्क सॉलिड मीन्स उसका एक टेक्निकल टर्म है, जो हम कितने मिल्क सॉलिड कितने होता है क्या होता है, तो वो अगर 2500 मेट्रिक टन से ज्यादा है तो मुझे ये सब जो चीजें हैं ये सेंट्रल लाइसेंस में आएंगी। इससे अगर कम है तो मेरा स्टेट लाइसेंस में जाएगा। सो यहाँ पे हमने जो डिफाइन किया है ये सेंट्रल लाइसेंस के लिए डिफाइन किया। जैसे मीट प्रोसेसिंग यूनिट में अगर देखते हैं तो 500 kg ऑफ मीट पर डे अगर मैं हैंडल कर रहा हूँ या 150 मेट्रिक टन पर एनम में हैंडल कर रहा हूँ, तो डेफिनेटली मुझे सेंट्रल लाइसेंस में जाना पड़ेगा। बट इससे मैं कम हैंडल करता हूँ तो मुझे ये स्टेट लाइसेंस में जाना पड़ेगा। जैसे कुछ वेजिटेबल ऑयल प्रोसेसिंग यूनिट्स है या जनरल यूनिट्स है जिनका मैन्युफैक्चरिंग मोर देन 2 मेट्रिक टन पर डे है, देन वो सेंट्रल लाइसेंस में जाएंगे। नहीं, उससे भी कम है आपका तो वो स्टेट लाइसेंस में जा सकते। मीन्स उनका लाइसेंस जो है वो स्टेट लाइसेंस इशू करेगा। अभी इसमें अदर में अगर देखते हैं तो जिसमें फूड कैटरिंग सर्विसेज है, जिस जो गवर्नमेंट की एजेंसीज है, जैसे IRCTC रेलवेज में देते हैं, एयरपोर्ट्स में देते हैं, सी पोर्ट्स में देते हैं या डिफेंस में जो देते हैं, ऑल आर कम अंडर सेंट्रल लाइसेंस प्रीव्यू। सो जब हम
सेकंड सेक्शन की बात करते हैं, तो शेड्यूल 2 की बात करते हैं, तो ये अभी ये जो पोर्टल है फोस्पॉस पोर्टल, ये पोर्टल थ्रू हैंडल होता है कि आपको यहाँ पे आप जाओगे तो आपको स्टेट सेलेक्ट करना पड़ता है कि आपका रीजन क्या है, आपका फूड बिजनेस, आप किस तरह कौन सा फूड बिजनेस, जैसे मैंने ऊपर डिफाइन किया था उस तरीके से आपको सब डिटेल भरने पड़ते हैं, एंड देन आपका एप्लीकेशन कंप्लीट हो जाता है. When we talk about the schedule 3, now schedule 3 is a fees, means गवर्नमेंट कितनी फीस आपको चार्ज करे. अब मैं अगर देखता हूँ तो रजिस्ट्रेशन, अभी ये रजिस्ट्रेशन रजिस्ट्रेशन किसको मैंडेटरी है, जो जो आपके जैसे पानीपुरी के ठेले है या आपके शॉप है जो फूड को आपको डिलीवर करते हैं, जैसे आइसक्रीम पार्लर्स हो गए हैं, ये सबको उन्होंने रजिस्ट्रेशन में कवर किया है. जो अभी सेंट्रल के प्रीव्यू में आता है, उनको 7,500 फीस पे करनी पड़ती है पर एनम. जब हम स्टेट लाइसेंस की बात करते हैं तो वो जिनका 500 एंड अबव अप टू 1 मेट्रिक टन पर डे प्रोडक्शन कैपेसिटी है, उनको 5,000 पे करना पड़ेगा. और 3,000 जो है वो बिलो 1 मेट्रिक टन प्रोडक्शन, और 501 to 10,000 लीटर पर डे ऑफ मिल्क. सो उसको भी डिफाइन किया है कि जिस कौन से स्टेट के लाइसेंस में कितना आपको चार्ज लगेगा. सो वो 3,000 to 5,000 डिफर होता है बेस्ड ऑन कि आपका कौन सा यूनिट है, आप मिल्क कर रहे हो या रेस्टोरेंट, आप रेस्टोरेंट के लिए कर रहे हो. देन जो अदर फूड सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं, अदर फूड सर्विस प्रोवाइडर मीन्स कैटरिंग सर्विसेज. कैटरिंग सर्विसेज मीन्स दे आर मोबिलाइज. आप कैटरिंग सर्विसेज कहीं पे भी जाके आप उसको सर्व करते हो, दैट ऑल आर अंडर द फूड सर्विस प्रोवाइडर्स. तो उनको भी जो लाइसेंस की फीस लगती है ये 2,000 के आसपास लगती है. ये जो अमाउंट है ये बेस अमाउंट है, इसके ऊपर 18% जीएसटी लगता है. सो एनी अदर फूड बिजनेस ऑपरेटर जो मीन्स ये सब चीजों में नहीं फॉल होते हैं, फिर भी उसको हम फूड बिजनेस में करते हैं. जैसे फॉर एन एग्जांपल मैं आपको बताऊं तो जैसे आपका मंडी से कोई किसी ने वेजिटेबल ले लिए, उसको वेजिटेबल को आपको साफ करके लोगों को दे रहे हैं, अच्छा क्लीन करके दे रहे हैं, तो ये मेन अपने जो शेड्यूल्स है उसमें कवर नहीं होता है, तो उसको हम अदर फूड बिजनेस ऑपरेटर कहते हैं. उनको भी 2,000 रुपीज पर एनम का कॉस्ट. जब हम शेड्यूल 4 की बात करते हैं तो शेड्यूल 4 जो है टोटल 5 पार्ट्स में कन्वर्ट किया हुआ है. कि जनरली फर्स्ट स्टैंड फॉर द पेटी फूड्स. पेटी फूड्स मीन्स जो मैन्युफैक्चरर करता है या सेल करता है एनी आर्टिकल ऑफ फूड हिमसेल्फ और पेटी रिटेलर. जैसे कोई जाके उसको प्रोवाइड मीन्स डोर टू डोर, जैसे आप इडली वड़ा और ये सब चीजें अभी जो डोर टू डोर जाके जो लोगों को सर्विस प्रोवाइड करते हैं, ऑल दीज आर कम्स अंडर द पेटी फूड्स. जैसे पानीपुरी वाला है जो एक ही जगह पे है, वो भी पेटी फूड में कंसिडर होता है. देन जो मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट हैंडल करते हैं, जिनकी कैपेसिटी 100 kg पर लीटर पर डे जो है उससे कम है, या उससे सॉरी उससे कम है बेसिकली. सो वो सब जो है उनको ये पेटी फूड कहा जाता है. तो जो पार्ट 1 रेगुलेशन है ये पेटी फूड के लिए बोला जाता है. इंडस्ट्री के लिए जनरल रिक्वायरमेंट ऑफ हाइजीन हाइजीन एंड सैनिटरी प्रैक्टिसेस, उसको शेड्यूल 2 में कन्वर्ट किया है. शेड्यूल 2 में स्पेसिफिक हाइजीन सैनिटरी रिक्वायरमेंट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हु इज सेलिंग मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट इसमें कवर होता है. और पार्ट 4 में जो है ये स्पेसिफिकली मीट एंड मीट प्रोडक्ट इंडस्ट्री में यूज होता है. और शेड्यूल 5 जो है
ये जनरली जो फूड बिजनेस ऑपरेट है, कैटरिंग और इसमें कवर होता है। तो इन सब की जो जनरल रिक्वायरमेंट्स है, क्या हाइजीनिक प्रैक्टिसेस फॉलो करनी चाहिए, क्या सैनिटाइजेशन प्रैक्टिसेस फॉलो करनी चाहिए, ये सब पार्ट जो है ये अलग अलग सेक्शन, अलग अलग इसमें कवर होता है। देन हम अगर फूड एडिटिव्स और फूड रेगुलेशन, इसमें सिर्फ और सिर्फ आपके जो फूड प्रोडक्ट्स है उसको स्टैंडर्डाइज किया गया है कि अगर आप मिल्क लेते हो तो मिल्क में कितना सॉलिड होना चाहिए, मिल्क में कितना आपका अदर कंपोजिशन होना चाहिए, कितना फैट होना चाहिए, कितना प्रोटीन होना चाहिए, इसके जो स्टैंडर्ड्स है। मिल्क को मिल्क तभी बोलेंगे जब सभी चीज उसमें अवेलेबल हो। तो ऐसे हर एक प्रोडक्ट के लिए कंप्लीट, there are multiple multiple standards is available. If you go through this regulation, you'll get to understand all this, because this is a very big subject, uh, that can be discussed separately sometimes. uh, देन हम कौन से, ये तो फूड स्पेसिफिकेशन हो गया कि किसको हम दूध बोलेंगे, किसको हम मीट बोलेंगे, किसको हम लिकर बोलेंगे, किसको हम अल्कोहलिक बेवरेज बोलेंगे, किसको नॉन अल्कोहलिक बेवरेज बोलेंगे। बट क्या होता है कि इसके अलावा भी हम कुछ चीजें उसके अंदर ऐड करते हैं। कभी कभी ये मैंडेटरी मीन्स उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए, फॉर एग्जांपल कि ईस्ट हमें यूज करना पड़ता है, जो हम बन्स, पाव और ब्रेड्स वगैरह बनाते हैं। तो ये जो एडिटिव्स है, दैट इज कॉल्ड एज एडिटिव्स। उस कौन सी चीजें ऐड करनी चाहिए और कौन सी चीज नहीं ऐड करनी चाहिए, ये रेगुलेशन वहां पे उसको स्टैंडर्ड ले डाउन करता है। सो इसके भी अपेंडिक्स है जो इसके सपोर्ट करते हैं कि इसको हम अलग अलग सेक्शन में डिवाइड करते हैं, जैसे फूड कैटेगरी सिस्टम, फूड कैटेगरी डिस्क्रिप्शन, फंक्शनल क्लास मीन्स किस चीज का क्या क्लास है। जैसे अगर हम आपने पैकेट के पीछे देखा होगा कि आर्टिफिशियल कलरिंग एजेंट और नेचुरल कलरिंग एजेंट्स और नेचुरल फ्लेवर्स, आर्टिफिशियल फ्लेवर, ये जो इसका फंक्शनल डेफिनेशन जो है वो किस तरीके से होना चाहिए और वो कैसे करेक्ट होना चाहिए, वो यहाँ पे डिफाइन किया है। उसके बाद हम यूज ऑफ फूड एडिटिव्स इन फूड प्रोडक्ट्स। तो अगर हमें एडिटिव्स भी डालने हैं तो वो कितने डालने चाहिए, इसको भी गवर्नमेंट एक, दिस रेगुलेशंस विल हेल्प अस कि कितने डालने चाहिए और कितने नहीं डालने चाहिए। और अपेंडिक्स भी डिस्कस करता है कि स्पेसिफिक सेक्टर। हेलो, हेलो। Yes, sir, we can hear you, sir. या सो अपेंडिक्स भी जनरली डिस्क्राइब करता है कि माइक्रोबायोलॉजिकल रिक्वायरमेंट्स कैसे होंगे, जो किस हर जैसे फिश एंड फिश प्रोडक्ट में अलग रहेंगे, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट में अलग रहेंगे, स्पाइसेस हर्ब्स में अलग रहेंगे, वेजिटेबल्स में अलग रहेंगे, मीट एंड मीट प्रोडक्ट में अलग रहेंगे। और जनरल रिक्वायरमेंट, ये जो मेन क्रिटिकल 5 आइटम छोड़ के जो बाकी के जो जनरल प्रोडक्ट्स है उनके माइक्रोबायोलॉजिकल रिक्वायरमेंट्स कैसे रहेंगे। देन इसमें जो नेक्स्ट सेक्शन होता है, फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड प्रोविजंस एंड रिस्ट्रिक्शन ऑफ सेल रेगुलेशन। हम क्या चीजें फूड मीन्स खाना बोल के सेल कर सकते हैं और क्या चीज खाना बोल के नहीं सेल कर सकते हैं, इसको कंप्लीटली डिफाइन किया है ये रेगुलेशन में। जो ह्यूमन कंजम्पशन के लिए है या ह्यूमन कंजम्पशन के लिए नहीं है, उसका क्या रैशनल है कि हमें वो खाना चाहिए नहीं खाना चाहिए, ये सब का जो स्टैंडर्ड है बेस्ड ऑन द इंडियन रिक्वायरमेंट ऑफ कंज्यूमर, कंज्यूमर रिक्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए ये बेसिकली डिफाइन किया गया। उसके बाद आता है फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड कंटेमिनेशन, टॉक्सिन्स एंड रेसिड्यू। मीन्स आप लोगों को पता होगा कि बहुत सारी चीजें जो है ना, हम प्रोडक्ट देखने के बाद हमें पता नहीं चलता है। देयर आर लॉट ऑफ इश्यूज हैपनिंग आफ्टर कंज्यूमिंग द प्रोडक्ट। जैसे हम कुछ भी खाते हैं तो उसमें जो दिखता है वो गलत दिख रहा है तो हम नहीं खाएंगे, वी आर नॉट ईटिंग द फूड विच इज हैविंग अ प्रॉब्लम। बट जो चीज आपको आंखों से नहीं दिखाई देती है, ऐसी चीज
फिर भी आपकी बॉडी को इम्पैक्ट करती है, ऐसी चीजों को इसमें कवर किया है। इसमें मल्टीपल कंटेमिनेशंस होते हैं, जैसे हमारे हेवी मेटल्स होते हैं, लीड, आर्सेनिक, कॉपर, टीन, कैडमियम। ये जो टोटल 7 से 8 मेजर कंट्रीब्यूटर्स है, जो हमारे सॉइल के थ्रू या कल्टीवेशन के टाइम पे ये चीजें प्रोडक्ट अपने खाने के अंदर आ जाती है। बट उसको लिमिट कैसे करें? देन हमारा क्रॉप कंटेमिनेशन होता है, नेचुरली टॉक्सिन्स होते हैं, जैसे एफ्लाटॉक्सिन्स हो गया। देर आर मल्टीपल टॉक्सिन्स जो जनरेट होते हैं। सो वो टॉक्सिन्स हमें इम्पैक्ट ना करे, तो ऐसे टॉक्सिन्स को हमें कैसे, कौन से लेवल तक हमें हार्म नहीं करेंगे, इसको भी हमने प्रॉपरली डिफाइन किया है। देन हम इंसेक्टिसाइड एंड पेस्टिसाइड यूज करते हैं। तो इंडिया में करंटली जो है, जो लेटेस्ट अपडेटेड डेटा है, 213 टाइप के पेस्टिसाइड हम चेक करते हैं। इन इन टेक्निकल टर्म्स, जो हमारे टोटल 13 मॉलिक्यूल्स टेस्टिंग होता है ग्लोबली, उसमें से हम ऑलमोस्ट 7 से 8 जो है मेन कंपोनेंट कवर करते हैं, जिसमें हम 213 नंबर्स में उसको रेसिड्यूज में डिवाइड करते हैं। देन एंटीबायोटिक एंड अदर फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी सब्सटेंसेस, जैसे अगर आप फिश लेते हो या आप चिकन लेते हो, तो उनको इंजेक्शन दिया जाता है, या उनको मल्टीपल एंटीबायोटिक डोसेज दिए जाते हैं। तो वो डोसेज जो है वो हमें डिटेक्ट करने चाहिए, क्योंकि वो हमारे बॉडी के ऊपर बहुत अच्छा हार्म नहीं करते, बट जो बिजनेसेस है वो इकोनॉमिकल गेन के लिए वो चीजें जनरली बिजनेस ऑपरेटर फॉलो करते हैं। तो आपको क्या चीज नहीं फॉलो करनी है, ये क्लियरली इसमें डिफाइन किया हुआ है। बायोटॉक्सिन्स होते हैं फिश एंड फिश प्रोडक्ट में, तो वो भी हमें इसमें रेगुलेट किया है कि, और जैसे मेलामिन और ये जो अदर टॉक्सिकोलॉजी प्रोफाइल होता है प्रोडक्ट में, इसको कंप्लीटली हमने ये रेगुलेशन में कवर किया हुआ है। सो जनरली रिकॉल, ये वर्ड जो है ना, फूड इंडस्ट्री के लिए बहुत बहुत ही भयानक वर्ड है, क्योंकि जब हम एक मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन बनाते हैं, तो अगर हम कम से कम लाखों नंबर्स में पीसेस या यूनिट बनाते हैं, जो लाखों से करोड़ों कस्टमर खाते हैं, अगर किसी मल्टीपल टाइम ये हमारा प्रोडक्ट खराब रहा, तो ये प्रोडक्ट हमें रिकॉल करना पड़ता है, क्योंकि उसके वजह से किसी की जान जा सकती है, या किसी को फूड पॉइजनिंग या मल्टीपल इलनेसेस हो सकता है। तो ये रेगुलेशन वेरी स्ट्रिक्टली बताता है कि आपको पूरा सिस्टम होना चाहिए, पूरा आपके पास अगर लास्ट यूनिट भी जो आपका बचा हुआ है वो वापस आपके पास आना चाहिए। और इस सिस्टम में आप इतने इफिशिएंट होने चाहिए कि जिसके वजह से अगर मेजर कुछ इशू होता है, तो उसको हम किस तरीके से कंट्रोल करना चाहिए। देन वी हैव फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड पैकेजिंग रेगुलेशन, जो जनरली बोलता है कि कौन सा पैक यूज होना चाहिए, किस तरीके का पैक होना चाहिए। सो हम जनरली देखते हैं कि हम रिटेल शॉप में जाते हैं, तो उसके ऊपर जैसे ब्रेड का पैकेट लेते हैं, तो ब्रेड का पैकेट में जो नॉर्मल वेंडर्स होते हैं, वो बहुत सारा जो कलर्स वगैरह जो यूज करते हैं, जो पैकेट में बहुत एडवर्टाइजमेंट और इसके लिए करते हैं, तो ये कलर जो है वो प्रोडक्ट के अंदर ना जाए, या प्रोडक्ट उसके अंदर जिस चीज में हमने, कंटेनर में, या अभी तो प्लास्टिक अलाउड नहीं, बट जो 50 माइक्रोन के ऊपर का प्लास्टिक है वो अलाउड है। तो वो माइग्रेशन में वाटर कितना जाना चाहिए, वाटर वेपर कितने जानी चाहिए, ये सबको एक स्टैंडर्डाइज वेज के फॉर्म में यहाँ पे एफएसएसआई ने डिफाइन किया हुआ है। एंड लेटेस्ट जो इसमें अपडेट है कि बाय 2028 हम, इंडियन गवर्नमेंट हैज टेकन अ टारगेट ऑफ रिड्यूसिंग ऑलमोस्ट 30% ऑफ प्लास्टिक वेस्ट। इसके लिए बहुत सारा गवर्नमेंट की तरफ से भी काम चल रहा है, और फूड बिजनेस ऑपरेटर जो है, जैसे हम लोग जो बिजनेस स्टार्टअप कर रहे हैं, उनको भी गवर्नमेंट बहुत सारी चीजों में सपोर्ट कर रहा है। इन सम केसेस कुछ फाइनेंशियल एड भी प्रोवाइड कर रहा है। देन
अब जैसे हमने मटेरियल भी देखा, प्रोडक्ट भी देखा, सब कुछ देखा, बट अभी जो कंज्यूमर है उनको इतनी टेक्निकलिटी पता नहीं होती है कि क्या चीजें है क्या चीजें नहीं है। तो इसके लिए हम जनरली लेबलिंग जो है, हर प्रोडक्ट को हम लेबलिंग करते हैं और लेबलिंग थ्रू उसको डिस्क्राइब करते हैं कि हमने क्या प्रोडक्ट पैक किया हुआ है, हमने कैसे प्रोडक्ट पैक किया हुआ है, और उसमें हमने चीजें क्या क्या ऐड की है, क्या क्या डाला है, क्या कलर डाला है, क्या एवरीथिंग मीन्स आर्टिफिशियल कलर डाला है या फ्लेवर डाला है या हमने प्रिजर्वेटिव डाला है। वो सब जो रिक्वायरमेंट है वो हम इसमें क्या क्या डिक्लेरेशन होने चाहिए इसको स्पेसिफाई किया हुआ। सो एक जनरल लेवल में हमें क्या क्या चीजें होनी चाहिए कि नेम ऑफ द प्रोडक्ट होना चाहिए, लिस्ट ऑफ इंग्रेडिएंट होना चाहिए, न्यूट्रिशनल इंफॉर्मेशन होना चाहिए, डिक्लेरेशन ऑफ वेज एंड नॉन वेज लोगो होना चाहिए, डिक्लेरेशन रिगार्डिंग फूड एडिटिव्स क्या आप डाल रहे हो वो होना चाहिए, डिक्लेरेशन नेम एंड कंप्लीट एड्रेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, रीपैकर, रीलेबलर ये होना चाहिए, एफएसएसआई का लोगो होना चाहिए, नेट वेट, रिटेल वेट, रिटेल प्राइस, रिटेल सेल प्राइस, कंज्यूमर केयर नंबर, ये सब चीजें होनी चाहिए, लॉट कोड और बैच कोड आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए, डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग होना चाहिए और एक्सपायरी डेट भी होना चाहिए, लेबलिंग होना चाहिए कि ये इंपोर्टेड प्रोडक्ट है और यहाँ के हमने उसको कन्वर्ट करके किसी नए फॉर्म में उसको पैक करके भेजा हुआ है, वो सभी इंफॉर्मेशन होना चाहिए, कंट्री ऑफ ओरिजिन होनी चाहिए कि हम इंडिया इंडिया का प्रोडक्ट खा रहे हैं या आउट ऑफ इंडिया का खा, मीन्स किसी यूरोपियन कंट्रीज का प्रोडक्ट लाके हम यहाँ पे खा रहे हैं। इंस्ट्रक्शन होनी चाहिए कि ये प्रोडक्ट को किस तरीके से खाया जा सकता है, कोई प्रोडक्ट डायरेक्टली खा सकता है, कोई प्रोडक्ट को हमें कुछ प्रिपरेशन के लिए यूज किया जा सकता है या रेडी मिक्सेस के फॉर्म में होता है। तो ये सब जो चीजें हैं इसमें देनी जरूरी है। और नाउ जो फूड एडल्ट्रेशन डिक्लेरेशन जो है, ये भी मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है कि अभी अभी आपको फूड एलर्जेंस जो है, हमारे यहाँ पे टोटल 5 to 6 एलर्जेंस है जिसको हमें डिक्लेयर करना मैंडेटरी है। सो एक जनरल अगर देखते हैं तो वेज, इसमें मैंने कुछ डेमोन्स्ट्रेशन के लिए आपको बताया है कि फूड एडिटिव्स किस तरीके से होता है, कि जिसमें ई नंबर होता है, दैट इज ऑल आर फूड एडिटिव्स। जो हम वेज और नॉन वेज लोगों की बात करते हैं तो रिसेंटली जो है हमने नॉन वेज का जो लोगो है सर्कल से लेके ट्रायंगल में कन्वर्ट किया है, वेज का लोगो है वो सर्कल है जो ग्रीन कलर में है। सो हमने ये भी कंसिडर किया है कि जब हम सर्कुलर नॉनवेज लोगो अर्लियर यूज कर रहे थे, उसको कन्वर्ट करके ट्रायंगुलर में जो किया है, इसका भी रीजन है कि यहाँ का सिंगल पर्सन जो कलर ब्लाइंड है, he can able to see that this is a veg or non-veg. So ऐसे जो ग्रुप ऑफ पीपल है उनको भी ये चीजें पता होनी चाहिए कि किस तरीके से कौन सा प्रोडक्ट मुझे खाना है या नहीं खाना है, कौन से वेजिटेबल्स खाने हैं। ऑल दिस न्यूट्रिशन इंफॉर्मेशन उसमें आनी चाहिए कि हम कितना मेरा डेली डाइटरी यूज में मेरा कितना कंजम्पशन होता है और कितना का कंजम्पशन हेल्थ के लिए अच्छा है। करंटली जो डेटा अवेलेबल है जो पब्लिक डोमेन में है, जो एनुअल रिपोर्ट 2018-19 में अगर देखते हैं तो फूड बिजनेस ऑपरेटर को बहुत सारे हेलो विक्रम सर। आ सकती है या कुछ भी जो उनको हेल्थ रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं। उसके साथ सब स्टैंडर्ड प्रोडक्ट मीन्स जिसमें हम एडल्ट्रेशन करते हैं, जैसे दूध में पानी मिलाना, आपको मसाले की जगह पे लकड़ी का भूसा देना,
या ऐसी जो सबस्टैंडर्ड प्रोडक्ट्स है, आपको चाय की पत्ती देना, बट वो चाय पत्ती पहले यूज हो चुकी है। सो ऐसे जो सबस्टैंडर्ड थे वो ऑलमोस्ट 17,000 के आसपास आइडेंटिफाई हुए थे। और मिस ब्रांडिंग एंड लेबलिंग रिलेटेड इश्यूज जो है वो ऑलमोस्ट 10,000 के आसपास थे। सो इन सबको अगर क्रिमिनल प्रोसेसिंग और इसको जो है टोटल जो फूड बिजनेस ऑपरेटर है, इन सब फूड बिजनेस ऑपरेटर को हम 32.57 CR का पेनल्टी, अगर क्वांटम वाइज देखते हैं तो ये बहुत कम पेनल्टी 2018 और 19 के बीच में इम्पैनल किया था। बट ये सिर्फ पेनल्टी लगाना ये एफएसएसए का मीन्स एम नहीं है। उनका एम सिर्फ और सिर्फ ये है कि रेगुलेशन जो है वो फूड इंडस्ट्री को पता चले, रेगुलेशन जो है फूड इंडस्ट्री फॉलो करे, रेगुलेशन जो है फूड इंडस्ट्री में लोगों को समझ में आए, सो दैट जो पब्लिक है, इंडियन पब्लिक है या इंडियन कंज्यूमर्स है, उनको प्रोटेक्टेड रहे, उनको कोई प्रॉब्लम ना हो। ये बेसिकली उसके पीछे एम है। सो इट इज ऑलवेज गिव एंड टेक रिलेशन। आपका हम भी जब बिजनेस के लिए सोचते हैं तो हम ये जरूर सोचते हैं कि हमारी कंज्यूमर जो है उनका हेल्थ सेफ्टी और उनकी जो इंटरेस्ट है वो हमेशा कायम रहे, सो दैट जो कोई भी हम बिजनेस कर रहे हैं वो सक्सेसफुल रहे। सो if anybody has a question, you can take few of the question. मिस्टर गणेश भट, हॅलो. हॅलो सर, गुड आफ्टरनून. सर हे जे नोट्स मिळेल ना सगळे? हाँ, मी शेअर करतो हे नोट्स. ओके ओके. Sir, I have one small doubt. Yes. Sir, myself Ganesh from Farm Gulf. We are looking forward to manufacture one of the ingredient for the pan masala industry. So Correct, sir. So this comes under the FSSAI regime, or what is the applicable section for this? Yes. Pan masala is also come under FSSAI reasons. It is a very separate standard which is available in FSSAI, which generally deals with these products. Okay. Thank you, sir. सर माझा एक प्रश्न, मेरा क्वेश्चन है, एनिमल फीड के लिए हमने एफएसएसआई निकाला है, और कोई फूड के लिए भी लगता है क्या ऐसा कुछ, एनिमल फीड के लिए? एनिमल फीड के लिए अभी जो रेगुलेशन है वो धीरे धीरे उस फेज में भी जा रहा है, बट करंटली एनिमल फीड के लिए भी कुछ मैंडेटरी रिक्वायरमेंट्स है जो करंटली एफएसएसआई में डिफाइन नहीं है, जो अभी ड्राफ्ट पेज में है। तो ये शायद अपकमिंग डेज, बट वही अगर मैं बात करता हूँ कि वही एनिमल, लाइक आप पोल्ट्री फार्म हैंडल कर रहे हो या आप कोई भी एनिमल विच इज यूज फॉर द इंटेंडेड कंजम्पशन ऑफ द पीपल, लाइक आप फिश भी कर रहे हो, तो उनके लिए मैंडेटरी पेस्टिसाइड जो है, ये जो 213 का लिस्ट है, ये मैंडेटरी वहां पे भी एप्लीकेबल होता है. ओके, थैंक यू सर. यस आरती मैम, बोलिए. हेलो सर, मुझे ये पूछना था कि सपोजिंगली मेरा कोई पैकेजिंग मटेरियल है. हाँ. और वो अभी तो पीओसी डेवलपमेंट स्टेज पे है, पर मुझे उस करेक्ट, वेरी गुड क्वेश्चन मैम. अगर मैं आपको ये स्पेसिफिकली जो रेगुलेशन है, जैसे मैंने आपको बोला था कि फूड सेफ्टी एंड पैकेजिंग रेगुलेशन, ये रेगुलेशन में उसको फॉलो होना चाहिए, तभी जाके उसको फूड पैकेजिंग मटेरियल है या नहीं. जिसमें हम माइग्रेशन टेस्टिंग की बात करते हैं, उसमें आप कौन सा मटेरियल यूज करते हो. तो फॉर योर इंफॉर्मेशन, जैसे अगर मैं प्लास्टिक यूज कर रहा हूँ
जो अभी धीरे धीरे कम होगा, बट प्लास्टिक यूज कर रहा हूँ तो उसको जेन्युइन मटेरियल होना चाहिए। जेन्युइन मटेरियल मीन्स जो हम प्लास्टिक प्रोड्यूस करते हैं उसके लिए कुछ पैलेट्स आते हैं, जो पैलेट्स एक ही बार हम यूज करके उसको बना सकते हैं। सेकेंड टाइम हम अगर बनाते हैं तो वो टॉक्सिकोलॉजी प्रोफाइल जनरेट करता है जो फूड हाँ प्रोडक्ट को खराब करता है। सो हाँ ये जो चीजें हैं, इसमें ये रेगुलेशन, स्पेसिफिकली ये रेगुलेशन बहुत क्लियरली डिफाइन किया हुआ है। हाँ उसमें क्या चीज होनी चाहिए, क्या चीज नहीं होनी चाहिए, इसमें दिया हुआ है। हाँ ओके ठीक है। बिकॉज मेरा अभी नया दैट इज बायोडिग्रेडेबल पैकेजिंग, तो यस। प्लास्टिक का तो कोई इशू नहीं आएगा। हाँ, बट इसमें कैसे है कि आप जो मटेरियल यूज कर रहे हो बायोडिग्रेडेबल, वो आपको खाने के लिए भी डिग्रेड ना करे। दैट हाँ इज, ये रेगुलेशन आपको बताएगा कि वो खाने को डिग्रेड करेगा या नहीं। तो उसके ओके लिए आपको मल्टीपल कुछ टेस्ट करने पड़ेंगे। जो टेस्ट का जो रेफरेंसेस है वो सभी ये रेगुलेशन में आपको मिल जाएगा। और एडिशनली अगर आपको स्पेसिफिक चीजों के लिए कुछ जानना है तो यू कैन कनेक्ट मी एंड आई विल हेल्प यू। अच्छा सर, ओके सर, ओके, आई कनेक्ट यू अगेन ऐसे जैसे ही मेरा पीओसी रेडी होता है। जी। ठीक है। यस, रजत निखाड़े। Yes. Hello. Sir, यस। I just wanted to know the difference between repacker, then packed and marketed by, and reseller. Okay, okay. Sir, it is a very good question, and I'm very happy that you raised this question. One of the participants raised this question. इसमें क्या है सर, इसमें मैं आपको दो सेक्शन में इसको कन्वर्ट करूंगा। जैसे आपने बताया कि रीपैकर, रीलेबलर, ये कंप्लीटली अलग सेक्शन है जिसको हम अलग से डिफाइन करते हैं। ये एक सेक्शन में डिस्कस करेंगे। और जो आप बोल रहे हो जो मैन्युफैक्चर्ड बाय, पैक्ड बाय, ये सब चीज है, ये दूसरे सेक्शन में। सो मैं फर्स्ट सेक्शन में आपको बता दूं कि रीलेबलर एंड रीपैकर क्या होता है। जैसे रीलेबलिंग की एक्टिविटी मींस क्या होगी मेरी, कि मैं कोई मटेरियल बाहर से प्रोक्योर कर रहा हूँ या किसी इंडियन ही मैन्युफैक्चर से प्रोक्योर कर रहा हूँ, और उसको मैं मेरा नाम दे रहा हूँ, मेरा ब्रांड नेम दे रहा हूँ, और मैं ये प्रोडक्ट को सेल कर रहा हूँ। तो ऐसी एक्टिविटी को रीपैकर एक्टिविटी बोला जाता है। रीलेबलर एक्टिविटी जो होती है कि कोई भी मटेरियल एज इट इज आता है, एज इट इज उसको मुझे थोड़ा सा मैं प्रोसेस करता हूँ और फिर उसको लेबल करता हूँ। जैसे मैंने बाहर से कुछ आटा लिया, उसका मैंने ब्रेड बनाया, और वो ब्रेड मीन्स उसका एक फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा हूँ ब्रेड लेने के लिए। बट ये ब्रेड बनाना इज नॉट रीपैकर। अगर वो ब्रेड बना के मैं उसके ऊपर जैसे गार्निशिंग करता हूँ, मैं कुछ गार्निशिंग करके उसको थोड़ा सा डेकोरेट करके उसको मैं बेचता हूँ। सो वो मेरा लेबरल होता है बेसिकली। एक मिनट। Okay. Okay. सो Thank you. ये एक एस्पेक्ट है। और दूसरा जो लेबलिंग के रिलेटेड है, मैन्युफैक्चर बाय और पैक्ड बाय। और कभी कभी क्या होता है कि मैं एक चीज मैन्युफैक्चर में खुद करता हूँ या मैं किसी थर्ड पार्टी से करवाता हूँ। सो अगर मैं थर्ड पार्टी से मैन्युफैक्चर कर रहा हूँ तो मैं मेरा भी नाम डालूंगा, और जहां पे मैन्युफैक्चर हुआ है वहां का भी नाम डालूंगा। सो इन दैट केस अगर मैं मैन्युफैक्चर करूंगा तो वो मेरा मार्केटेड बाय में आएगा, और Hmm. जिससे मैं मैन्युफैक्चर करवा रहा हूँ वो मैन्युफैक्चर बाय में आएगा। नहीं, वो मैन्युफैक्चर बाय में आएगा, लेकिन उनका मोबाइल नंबर रहेगा कि नहीं रहेगा? उनका लाइसेंस नंबर रहेगा सर। हम जब पैकेज के ऊपर अगर डालते हैं ना, तो हम किसी का मोबाइल नंबर नहीं डालते, उनका लाइसेंस नंबर डालते हैं। ओके ओके। Sir, Okay. I have one similar question. So, Yes. रीपैकेजिंग जो करेगा, नहीं तो रीलेबलिंग करेगा, उनको स्टेट लाइसेंस की जरूरत होगा कि सेंट्रल लाइसेंस का जरूरत होगा? उसकी करेक्ट, वेरी एप्लीकेबिलिटी क्या है? करेक्ट, वेरी गुड क्वेश्चन। जैसे मैंने आपको शेड्यूल बताया था। ओके, सो यहाँ पे आप शेड्यूल देख रहे हो जहाँ पे Yes, sir. Yes, sir. फूड रीपैकर और रीलेबलर जो है वो डायरेक्टली सेंट्रल लाइसेंस पे है। Okay.
Fine, sir. Thank you. Okay, Samish Shelar. Hello. Hello, sir. Hello. 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 Yes, sir. Two persons are here, those who are making wines. Yes, sir. Okay. Anirao and Desmukh. Yes, sir. You are there. You are here in this group. Yes, sir. Anirao and Yes, sir. Desmukh, please. I'm available, sir. Ashish Anurag. You just ask them. Ask Mr. Vikram. आपका विदाउट लाइसेंस आगे जाएगा कि नहीं जाएगा? वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन. मीन्स आप दोनों वाइन प्रोडक्शन कर रहे हैं, विदाउट लाइसेंस आप आगे जाएंगे कि नहीं जाएंगे? ये चीज क्लियर करिए उनसे, विक्रम जी से. जी सर. जी सर, आपका सिनारियो मुझे थोड़ा सा बताओगे तो आई विल हेल्प यू आउट इनफ. Vikram ji, in my case, although I have not started a production, but I have tried, I have started having a test phase basically. I'm manufacturing on a home scale, you can say. So if I have to go for FSSAI license, what are the basic requirements that I need to fulfill? Or otherwise, does it really need a FSSAI license for a product like wine? Or if it is a cottage level? अनुराग साहब, अभी तक आप FSSAI लाइसेंस के लिए अप्लाई नहीं किया? जी नहीं सर. हाँ, सब लोग को आपको बहुत एडवाइस दिया जी. अभी 1-1.5 महीना हो गया जी. इट इज बेटर यू अप्लाई इन नेक्स्ट कोर्ट. ओके. नॉट इन दिस कोर्ट. राइट. ओके सर, it is very good question. Because this is related to wine. आप नहीं करेंगे तो हम आगे आपको बढ़ाएंगे नहीं. Yeah, true. I know. But at least I can take the opportunity to find out from Vikram sir what exactly would be really needed. Yes. Sir, it is very ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चंस बहुत सारे लोगों के बीच से आता है. तो बेसिकली आपको लाइसेंस कब होना चाहिए? आप जब मैन्युफैक्चरिंग चालू करते हो और उसको कमर्शियलाइज करते हो. कमर्शियलाइज जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि अगर मैं वाइन मैन्युफैक्चरिंग कर रहा हूँ और मैं पायलट टेस्टिंग पे चल रहा हूँ कि मेरा जो प्रोडक्ट बन रहा है वो मैं टेस्टिंग मार्केट टेस्टिंग फेज में हूँ, तो उस टाइम पे मुझे लाइसेंस की मैंडेटरी रिक्वायरमेंट नहीं. बट वही अगर मैं वाइन सिंगल यूनिट अगर मैं सेल कर रहा हूँ और विदाउट FSSAI लाइसेंस, इट इज अ पनिशेबल ऑफेंस. सो जनरली जैसे कोई स्टार्टअप करते हैं तो स्टार्टअप में बहुत इनिशियल फेज में जहां पे आप मार्केट सैंपल्स दे रहे हो जो जिसका कमर्शियल वैल्यू नहीं है, आप टैक्स इनवॉइस नहीं जनरेट कर रहे हो या इसको सिर्फ आप टेस्टिंग पर्पस के लिए, और उसके लिए भी लिमिट है. मीन्स अगर आप बना रहे हो तो 100 kg या 100 लीटर से ज्यादा ये क्वांटिटी नहीं होनी चाहिए विच इज बीन प्रोड्यूस कमर्शियल नॉन कमर्शियल. अब कमर्शियली जब हम उसको प्रोड्यूस कर रहे हैं तो सिंगल यूनिट शुड नॉट बी सेल until and unless we have a license. Okay. और आपको बता दूं सर कि अगर आपके डॉक्यूमेंट सब क्लियर है ना तो विद इन अ मंथ यू विल गेट अ लाइसेंस. Okay. Fine. Thank you, sir. Yeah. अनिराव सर, बोला सर. मेरे पहचान वाले 3-4 शैंपेन के लोग हैं वाइनरी की इंडस्ट्री, मेरे को फोन कीजिए ना, मैं हेल्प करूंगा ना लाइसेंस के बारे में. जी सर. आपने फोन ही नहीं किया. ठीक है अनिराव सर. हेलो अनिराव सर, मैं आपको मेघांडे सर का नंबर भेज देता हूँ. जी. मोनीश देशमुख सर, मोनीश देशमुख. हेलो. आहे सर इकडे. हाँ सर, आप बोलिए ना, आपका भी वाइन है ना? हो. नाही, माझे बेसिकली क्वेश्चन जे होते क्लिअर झालेले आहेत. आमचं कारण ऍप्लिकेशन आहे ऑलरेडी प्रोसेस मध्ये, आम्ही ऑलरेडी अप्लाय केलंय. ओके, ठीक. नहीं, देशमुख जी जी सर. आपका ये वाइनरी का सर्टिफिकेट नहीं आएगा ना
क्योंकि हाँ आज सर। तक हमारा पास सब पड़ा है, हम आगे जी बढ़ाएंगे नहीं आपको कि मैं जी सर। RIC 2 में आपको आगे बढ़ाऊंगा नहीं, प्लीज कंसीडर जी माई केस। जी सर। जी सर। तुम आप विक्रम जी के साथ बात करते रहिए, क्योंकि जी बहुत लोग मर रहे हैं, इसको दारू फारू पी के बहुत लोग मर रहे हैं। ओके, वेरी हाँ अपफ्रंट हाँ आई एम जी सर। टेलिंग यू। जी सर। जी ओके, सर। नहीं 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 नहीं, विदाउट लाइसेंस तो नहीं करना है, लाइसेंस के लिए अप्लाई किया है। लाइसेंस एंड प्रॉपर लाइसेंस होना चाहिए, आपका जी सर। प्रोडक्शन प्रॉपरली होना चाहिए, देन आई विल अलाउ यू। जी ओके, सर। यस सर। हाँ, इसका अंदर और किसका है समीर रिलेटेड शेलार, फूड? समीर फूड शेलार, और यस समीर सर। शेलार, यस 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 हाँ सर, बोलिए। मेरा क्वेश्चन था, हम जूस मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं विक्रम सर से। जी हाँ, हम जूस शुगर केन जूस मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। ऑलरेडी हमने रजिस्ट्रेशन कर दिया था, क्योंकि हम 12 लाख के नीचे थे। अब हम सेलिंग करने जा रहे हैं, और हमें कुछ दुबई में एक्सपोर्ट के लिए भी कुछ रिक्वायरमेंट है। तो जी मैं ये क्वेश्चन था कि मुझे एक्सपोर्ट लाइसेंस लेना पड़ेगा या सेंट्रल लाइसेंस से मैं कर सकता हूँ, या दोनों अलग लेना पड़ेगा? ओके सर, ये स्पेसिफिक केस के लिए मुझे थोड़े से 2-3 क्वेश्चंस आपको पूछने पड़ेंगे कि आपका रजिस्ट्रेशन लाइसेंस था, स्टेट लाइसेंस था या सेंट्रल लाइसेंस था? अभी मेरा रजिस्ट्रेशन लाइसेंस था। ओके, सो नाउ और इसका वैलिडिटी कब तक का है और कब आपने अप्लाई किया था? मैंने दर साल अप्लाई रिन्यू करता हूँ, अभी 4 साल हो ओके गए मेरे। ओके, सो बेसिकली जो अब रजिस्ट्रेशन से आपको ना स्टेट या सेंट्रल लाइसेंस में जाना पड़ेगा, और ओके फिर ये जब सेंट्रल लाइसेंस आपका इशू हो जाएगा, और ये माइग्रेशन भी बहुत इजी है, आपको कुछ ऑनलाइन एप्लीकेशंस करके उस चीज को आप माइग्रेट कर सकते हो। ओके सर। जैसे ही आप माइग्रेट करोगे उस टाइम पे आपको एक ऑप्शन आएगा एक्सपोर्टर करके। ओके Okay, so there are two exporter options. One is a 100% export. Second one is a only exporter. ओनली Okay, एक्सपोर्ट। so उस सेक्शन में आपको ओनली एक्सपोर्टर कंसिडर करके पहले आपको रजिस्टर करना पड़ेगा, और व्हाट यू आर गोइंग टू एक्सपोर्ट वो आपको स्टैंडर्ड कैटेगरी में डाल के उसको आपको लिस्ट मीन्स आपके लाइसेंस में आना चाहिए, तभी जाके आप एक्सपोर्ट कर पाओगे। ओके ओके ओके, थैंक यू सो मच। या Hello, sir. यस I'm Indumati, sir. यस Sir, we are doing biodegradable tumblers for giving and coffees. And मैम may I योर know, वॉइस इज and will ब्रेकिंग, आई it एम नॉट come under FSSAI? Your voice is breaking, ma'am. I'm not able to hear you. Audible? Just a minute, sir. Just. Sir, now it's audible. Yes, yes, ma'am. Hello, sir. Yeah. Sir, biodegradable sugarcane tumbler, sir. Yeah. Hello. No, if the or whether it comes. Madam, turn off your audio. Then turn off your video. Then your audio will be clear. Okay, okay, sir. Sir, I don't know Hindi, sir. Yeah. Your voice is, means your question is not completely audible. हेलो इंदुमती जी, आई थिंक नेटवर्क इश्यूज। Okay. ओके, Yes, sir. I'm waiting, sir. I'm waiting. हेलो Hello. या Hello, sir. I'm Indumati. I'm waiting for your answer, sir. या बताइए, आपका क्वेश्चन बताइए। Sir, we are making sugarcane tumblers, sir, for giving teas and coffees. So, under what category I should get the license, and what Uh, should I do? okay. So, your product is consumed by any of the customer? No, sir. It is end used as a cattle feed, sir. After usage by the customer, it can be end used as a cattle feed. Okay. Then it will not cover under FSSAI. Okay, sir. Okay.
Whether I want to get any anything, license and what under anything, what. if that serves to the catering, specifically for means any animal or somebody, then and that animal is used as in food for human consumption, then all process need to be have some licensing systems. So you might have to go for the registration in that case. Okay, sir. Okay. Okay, Shriram Gadve. Yes, sir. Hello. Yes. We are engaged in production of millet products Yes. by adding some legumes, pulses, or some powder of carrot like mushroom. This kind of ingredients we are trying to put in our product, new to products. Yes. Which lab, accredited lab, will certify our product has the nutrient like this, like this, like this. Okay. Which where should we approach? Okay. Sir, if you go to the FSSAI site, means if you require, you state me the region or this thing. I'll show you how you can go and check this thing. Okay, sir. Just a second. I'm just showing you the screen. Okay, sir. Is this screen visible to you? Yeah, sir, visible. Okay. So when you go to the FSSAI, this Right, sir. is, you just write a FSSAI. Right. Okay. You go to the regulation, food Yes, safety regulation. Okay, sir. Okay. Then you have a food safety standard laboratory sampling and analysis. Right, So sir. Right. you have to use this compendium. Yes, right, sir. Just a second. This is last been updated on 4th. Right, sir. I got it. And there are some notification as well. I'll Right, just sir. show. Here you'll get everything. Means when it talk about the regulation, when Right, it sir. talk about human resources and everything, means you get everything, lab Yes, sir. Yes. name, Yes, everything sir. you get it. Yes, sir. Yes. Thank you, sir. Hello. Rajat I Nikhade. got it. Yes. So there is one mandate of for e-commerce that they should have only central license. Means, Yes, sir. even if there is means no turnover like that, Correct, sir. whatever it is for central. So Yes. what actually they mean e-commerce? Is it just a website, or are they only online and no offline business? Sir, if you, in any of the cases, if you are selling online, means I'll give you one example. I have Okay. listed product in my Amazon store, and Hmm. I have a local shop as well. Hmm. Okay. Then also I need for the central license. If your Okay. single unit is sold through online portal, then or your commercial websites, your self-defined websites, anything, then you should be in a preview of central license. Okay. Okay. Got it. Okay. Mrs. Indumati, Hello, sir. you just asked. Regarding your COP, Yes,
Any FSSAI requirement is there or not? Sir, is my voice audible? Yes, sir. Yes. Hello. Hello, sir. Is it audible? My voice is audible for you? Yes, yes. You just discuss regarding your product with Vikramji, Mr. Vikramji. Okay, sir. Sir, shall I explain now? Time is going out, please. Sir, we are making sugarcane biodegradable cups, sir. After used by the consumer, it can be induced as an aquatic feed or as a cattle feed. So that's for that, whether I want to take any license or want to physics certificate. This is my question. Okay. Like I said earlier, this require license if these whatever you supply to cattle feed, that cattle feed is used, means whatever the animal or the commodities which is being used, if they are intended for the human consumption, like if you're providing to the birds like birds chicken or something like that, feeding to them, and that chicken is eaten by let's suppose that chicken is used for the slaughtering houses, then you should have to apply for the If we license. are giving to Right. our cattle, okay, sir. Sir, we are giving to our cattle, so we should test the milk or the product. Yeah, so if it is a cattle feed which is used by means for the milk and all this, so you need to go for the registration, FSSAI registration, which is of 1,000 rupees only. Okay.